Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I'm here again to put my point of view on something which was, really disturbing me and which came into my notice or which I understood few days back. And then I thought that at least I should put my views on this because it's very widely spread in our society now these days. And people don't talk about it openly, and many people they suffer because of such issues in our society. So, and that is a thing why I put the name that how to deal with an adult facing childhood trauma. Uh, what I want to talk is that, see, when we say childhood trauma, first of all you need to understand that there are many kind of traumas a person or an individual can have in their life. Childhood traumas are the traumas which mainly stays till 10 years or maximum till the teenage. If an individual who is more than 40 years or 35 years or is married, leading very normal life in our society, having kids, doing a very decent job, has a very nice image in the society and is very normally, and और उसको लोग बहुत अच्छे से बहुत एक शरीफ इंसान की तरह जानते हैं और mean to say he looks very normal. He's having all the facilities. He's enjoying the life in every term. And then if that individual comes to you or if that individual portrays that he's having a childhood trauma, it's totally a fake person, it's totally a fake personality. He's just a person who is having double face or he's wearing a mask in the society and moving around and gaining the sympathy of people by saying this that I had or I have childhood traumas. कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है, बिकॉज एक जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं और या अ पर्सन हु इज़ डीलिंग विद चाइल्डहुड ट्रॉमास, यू कैन सी ऑन देयर फेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा विल नेवर लास्ट टिल द एज ऑफ more than 20 or 25. If an individual understand or if he survives and is leading a very normal life, अब वो जॉब करता है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, अपनी बच्चों के साथ में अपनी फैमिली में उसका सब कुछ बहुत अच्छे से सेट है, दैट पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा. दैट पर्सन इज़ अ वेरी बिग सिंपैथी गेनर, जो एक इस चीज़ का उसको बहुत अच्छे से, मैं ये नहीं कहती कि उस इंसान को कभी हुआ नहीं होगा या उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ होगा. होता है, लोगों की लाइफ में होता है. इवन आई हैव फेस्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आफ्टर माई फादर्स डेथ. माई फादर डेथ वॉज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी बिकॉज इट वॉज नॉट a natural death. So but it lasted only for a month or more. And once a mature person understands that I have a responsibility and I have things to do in life, then any trauma cannot affect you. Maximum to maximum इतना हो सकता है कि आप अकेले में रो सकते हैं, आपको किसी के साथ की ज़रूरत हो सकती है. बट एक इंडिविजुअल जो इस बेसिस पे कि मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमास है, आओ मेरे साथ दोस्ती करो, आओ मुझे आई शुड हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ एंड पीपल शुड सिंपैथाइज मी, और अपने फेस पे वो पहन के घूमता है दिन रात. और जो भोले लोग होते हैं या जिनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता समाज का या इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में, ये ऐसे लोग इनके ट्रैप में बहुत ईजीली आ जाते हैं. सो स्पेशली द लेडीज़. एंड आई विल टेल यू कि ये सारी चीज़ें, ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा या ये जो माइंडक्राफ्ट चलता है, मेनली आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द मेल्स ऑफ द सोसाइटी बिकॉज दे tend to have such kind of personalities, especially those who ऐसा नहीं है कि ladies नहीं होती हैं, but the percentage is more of males because they are very cunning and they know how to manipulate ladies especially, and to gain certain kind of benefits from them, and they abuse on every level. They abuse the ladies on every level. They try to take as much as favors they can have on the basis of by showing that I am having childhood trauma or I am facing or I am dealing these kind of personality problems. और जो सीधी सादी लड़कियां या लेडीज़ होती हैं वो उनके चंगुल में या उनके ट्रैप में आ जाती हैं.
they will never target a person who they know that will understand in their this all नेचर, और जो समझ जाएगा या जो समझ जाएगी, ये लोग उनसे बहुत दूर होते हैं, बिकॉज समवेयर डीप डाउन दे आर वेरी इनसिक्योर एंड वेरी वीक पर्सनैलिटीज़. इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये कन्फ्रंट कर सकें. दे विल नेवर कम एंड कन्फ्रंट यू इफ़ दे हैव डन वेरी बैड ऑल्सो विद यू. एंड more or less, they never feel, they are not very sympathize kind of, they never sympathize with anyone. उनके दिल में ये इतने अंदर से evil हो चुके होते हैं, because they don't feel that what kind of pain they are giving or how they are playing with the lives of people. I really sympathize with the family members, those who deal with them on daily basis, because they are pathological liars, they are a big नार्सिसिस्ट, दे आर वेरी बिग मैनिपुलेटर्स. और इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि किस तरह का बिहेवियर करके मुझे किस तरह का बेनिफिट ईजिली अवेलेबल हो जाएगा. सो स्पेशली आई वॉन्ट टू टॉक हेयर लाइक the ladies of our society, or at least the people, those who know me, that please understand as much like जितना जल्दी हो सकता है इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को समझने की कोशिश करिए. और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आजकल हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं, जो थोड़ा सा रोना धोना करके और बहुत तरह के फेवर्स आपसे ले सकते हैं, या आपकी लाइफ को इतना टॉक्सिक बना सकते हैं दैट यू विल certainly have a kind of trauma. ये इतने like well crafted होते हैं that इनको कोई trauma नहीं होता, but they will give you the lifetime trauma, I'm telling you. And what else to tell, because I have literally seen people, those who have trauma, I have personally dealt with that kind of thing. My father's death was a big tragedy for me. और ये जितने भी trauma होते हैं ये जो भी इस तरह की चीज़ें सबकी लाइफ में घटित होती है, एक पॉइंट पर वो आपके चेहरे पे दिखता है. एक इंसान जिसको किसी भी तरह का ट्रॉमा होता है या कोई बहुत बड़ी चीज़ उसकी जीवन में जब घटित होती है, वो इंसान इतना अकेला हो जाता है. वो जाके लोगों से उनके बेनिफिट्स नहीं लेता, उनसे फेवर्स नहीं लेता, या अपने उस ट्रेजेडी का या अपने उस दुख का एडवर्टाइज़ नहीं करता. राइट, ये वही लोग करते हैं जो अंदर से बहुत खुश होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, एक बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग होते हैं, जिनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती. ये पूरी तरह करप्टेड, दे आर वेरी ईवल फ्रॉम इनसाइड. उनको कोई मतलब नहीं होता कि ये किसको किस तरह से स्पॉइल कर रहे हैं, किसी की पीस ऑफ माइंड स्पॉइल कर रहे हैं, किसी को किस तरह से अब्यूज़ कर रहे हैं. इस तरह के लोगों को सिर्फ अपने से मतलब होता है. दे आर वेरी सेल्फिश एंड it's very it's very good if you understand such kind of personalities, if they exist around you, or if they are in your family or in your friend circle. So try to understand, as soon as if you very closely, if you will watch their behaviors, you will understand that, oh, this person is so and so. Or traumas are traumas. If you want to see the traumas, go and meet some wife, any wife whose husband is died in जो ये शहीद होते हैं या जो सोल्जर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स से जाकर मिलिए, तब आपको पता चलेगा ट्रॉमा क्या होते हैं और सच्चा दुख क्या होता है. एक बुज़ुर्ग माँ बाप जिनका बेटा अगर आर्मी में था, या एक बीवी जो इस सब से गुज़र रही होती है, वो दुख होते हैं जो रियली जो अटेंशन देने लायक होते हैं. इस तरह के लोग जो एक एसी ऑफिस में बैठकर और बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, अपनी फैमिली में सब कुछ सेट है, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बीवी बहुत सही है, एंड दे आर कमिंग एंड टेलिंग यू दैट आई हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड प्लीज़ गिव मी फेवर्स, और आई नीड समवन टू अंडरस्टैंड मी. कान के नीचे दो लगाओ, सारे ट्रॉमास 1 मिनट में बाहर इनके. Understand? So, and the problem is with the ladies, because the moment such kind of weak men, they come into their life and थोड़ी सी तारीफ करके, and if इनकी जो strategies होती है ना, they will
फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल टेल यू दैट आई सी इन यू, इस टाइप का इंसान जो मुझे समझ सकता है, यू हैव दैट काइंड ऑफ मैंटेलिटी, यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंड सेट, एंड यू आर सो दिस एंड दैट, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विद लेडीज़, दैट जरा सी कोई तारीफ़ कर दे, जरा सा उनको कोई ये दिखा दे कि यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड यू कैन फिक्स मी वेरी वेल, वो पूरा रिहेबिटेशन सेंटर खोल के बैठ जाती कि दैट नाउ इट्स माई ड्यूटी टू फिक्स दिस मैन। वेक अप लेडीज़, ही इज़ ऑलरेडी वेरी मच फिक्सड इन हिज लाइफ। इस तरह के लोग बहुत इतने ज़्यादा फिक्स और इतने ज़्यादा कनिंग होते हैं दैट दे विल फिक्स यू वेरी नाइसली एंड विल गो अवे वन डे एंड यू विल हैव अ ट्रॉमा। इस तरह के लोगों को कोई ट्रॉमा नहीं होता। So please don't come into that trap if any man or if anyone comes to you and tell that I see in you that kind of person, you can, you know, I like your energy and I know you can understand me very well, I can see। बहुत बार ये आपको ये भी दिखाएंगे कि I can see you are also facing similar kind of things in your life, but you never open up and you're very patient, you know, tell on their face that I'm very happy in my life, I am not facing any such kind of nonsense in my life, okay, so don't play these all things with me। But the problem is that हमारे समाज की आज भी औरतें जो आउट ऑफ 100 आई वुड से 30 to 40% अभी भी पूरी तरह से, जिसको शिक्षित कहते हैं ना, मेंटल लेवल पे शिक्षित होना, वो अभी भी बहुत कम है। अभी भी इतनी भूख है ना हमारे यहाँ की औरतों में कि जो ये चाहती हैं, जरा से किसी ने तारीफ़ करी है, जरा सा किसी ने बोल दिया कि नो आई सी इन यू, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर दिस एंड दैट, और वो इस ट्रैप में आ जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद वही रो रही होती हैं ये कह के कि पीपल प्ले विद मी एंड पीपल, यू वांट पीपल प्ले विद यू, दैट इज़ वाई पीपल प्ले विद यू, बिकॉज आपको ये आप ये जो स्किन शो चल रहा है हमारे समाज में कि 40-45 साल की होने के बाद भी आप ये जो छोटे छोटे कपड़े पहन कर घूमना, एंड यू वांट टू शो पीपल कि हाउ डेलिकेट आई एम, हाउ आई एम लाइक अ बार्बी डॉल, कम एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू, एंड बिकॉज यू हैव मेड योर सेल्फ लाइक दैट। तुम दुकान खोल के बहुत अच्छे से बैठी हुई हो कि लोग आएँ और अपना तुमसे दुखड़ा करें, तुम्हें इस तरह का समझें, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर थिंग इन यू जिसके बेसिस पे आप एक सही दोस्तों को दोस्त बना सकें या रिलेशंस बना सकें। यू हैव ओनली दिस थिंग, then be ready, you will be used like a tissue and will be thrown away, then why you cry? So this is something different topic which I will definitely talk one day, but here I want to bring attention of as much as people, those who listen to me and those who know me, that please don't come in trap of such kind of sick mentality people, those who use such kind of terms, this trauma, and I have childhood trauma, and I डेफिनेटली आई एक्सेप्ट कि उस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ बचपन में ऐसा हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, जो भगवान ना करे किसी और इंसान की लाइफ में हो या कोई फेस करे, लेकिन एक उम्र तक वही चीज़ हो रही है और उसका वो दुख निकल नहीं रहा दूसरे हाथ पे, क्योंकि देखिए अगर इस तरह का दुख उस इंसान को होता तो वो या तो एसाइलम में होता या रिहेबिटेशन सेंटर में होता। एक इंसान जो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू स्टडी देयर बिहेवियर, यू नीड टू स्टडी देयर लाइफ, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस हद तक क्या चीज़ें सही हैं। एक इंसान जो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिसकी फैमिली में सब कुछ ठीक है, एंड दैट पर्सन इज़ कमिंग एंड टेलिंग यू दैट आई हैव चाइल्डहुड ट्रॉमास। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं होता है ऐसे लोगों को, दे आर जस्ट डबल फेस मीन मेंटालिटी पीपल, जो इस तरह के टर्म्स यूज़ करके आपसे सिर्फ या तो दोस्ती करना चाहते हैं या कुछ दिनों का फेवर, या पीपल दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट। सो दैट्स इट, आई वांट टू tell and I want to convey my thoughts on, and please expose such kind of people, please। प्रॉब्लम यही होती है कि लेडीज़ ये डर जाती हैं कि हाय क्या होगा, या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, फैमिली सपोर्ट नहीं होता, खुद अपने आप में इतनी सशक्त नहीं होती कि खुल के सामने आ सकें और बोल सकें कि दिस पर्सन हैज़ यूज्ड मी, और दिस पर्सन हैज़ गिवन मी so much toxicity into my life, or has used me on certain level that I want to talk about it, and but I think
you should talk, you should expose such kind of people. तुमको इतना समझ होनी चाहिए कि जो इंसान आपके साथ खेल कर चला गया या जो इंसान आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर सकता है वो, और फिर then his target will be someone else. Once you will understand his personality traits and what kind of person he is, he will never come back to you. वो ऐसे ऐसे पूंछ दबा के भागते हैं ऐसे लोग कि वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे कन्फ्रंट करें या आपसे बहस करें. ये अपने आप में इतने इनसिक्योर, इतने कायर, इतने कावर्ड होते हैं कि ये आपकी क्या हेल्प करेंगे, आपको क्या सपोर्ट करेंगे. ये अपने आप को ही सपोर्ट कर लें, वही बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए. अपने सपोर्ट को ही ये सर्वाइव करने के लिए ये लोगों से इस तरह के टर्म्स का फ़ायदा उठाते हैं. तो देर आर नो ट्रॉमास, देर आर नो, जिनको ट्रॉमास होते हैं उनके चेहरे पे दिखते हैं. जिनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ घटित होती है, आप उनके चेहरे पे उनकी लाइफ में को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं कि ये इंसान किस तरह के दुख से गुजर रहा है. क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती है, उसको जो सच में किसी तरह के दुख से गुजर रहा होता है, उसको ना अपनी ड्रेसिंग सेंस होता है, ना उसको ये इस बात की चिंता होती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ना उसको किसी दोस्त की ज़रूरत होती है. क्योंकि फर्स्ट दैट पर्सन नीड्स टू डील विद हिज ओन ग्रीफ और सॉरो ही इज़ गोइंग थ्रू. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट. you Please ladies, wake up and understand such kind of males. Don't get into their traps and expose them openly and go and talk to them, and so that in future they would not be able to do such kind of what should I say, I don't want to use any words which will hurt other people, those who are really having such kind of traumas in their life. But there are certain kind of individuals, those who play with people's life by using these terms, that I have childhood traumas or I had childhood traumas, and please मुझसे सिंपैथी करो, मुझसे दोस्ती करो, मुझे प्यार करो, मुझे these are all just techniques to use people. That's it. So be strong and get independent, get that much strength to come forward and talk about such things which if हो गया, क्या हो गया, गलती हो गई, गलती इंसानों से होती है. अगर कुछ ऐसा हो भी गया है, कम फॉरवर्ड, बट डोंट लेट एनीवन कंटिन्यूसली अब्यूजिंग यू इन सम फेयर दैट अगर ये मैंने एक्सपोज कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा. People will understand that what he or she has done to you. So we should certainly not accept such kind of people in our society or around us, and I would say that we should openly expose them and don't feed their ego. Show them their real place in your life and tell them very openly that not me, you cannot do all these things to me, don't even think. Okay, so that's it. Especially it was for ladies. So be strong, be independent, and get your strength back. That's it. Thank you. Take care of yourself, and I'll come back with something whenever I'll see which needs to be highlighted in our society and we need to talk about it. So that's it. Thank you.